Standard 12th Science English Medium Exercise 7.9. Find the value. First question. Integration from -1 to 1 x plus 1 dx. This -1 is called lower bound and this 1 is called upper bound. यहाँ पर dx है तो ये जो lower bound and upper bound है वो x की वैल्यू बताते हैं. ओके, आफ्टर इंटीग्रेशन ये x की वैल्यू डालनी है. ओके, -1 to 1 इंटीग्रेशन x dx प्लस -1 to 1 1 dx. x का इंटीग्रेशन x²/2 1/2 को बाहर लिया, x² लिख दिया, -1 to 1. फिर 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम -1 to 1. डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं डालते. ओके, अभी x की वैल्यू पहले 1 डालते हैं, सो 1/2 तो बाहर निकल गया, 1² अपर बाउंड डाला, माइनस लोअर बाउंड डालेंगे -1 प्लस अगेन अपर बाउंड 1 एंड माइनस लोअर बाउंड डाला -1. 1² is 1, -1² is again 1, 1 minus 1 is 0, and this is the 1 plus 1, it is 2, 0/2 plus 2, and the answer is again 2. Second question, from 2 to 3, 1 upon x dx. Integration of 1 upon x is nothing but log modulus x from 2 to 3. Put the value of x as a 3, so it is log 3 minus lower bound डालते हैं log 2. Log 3 minus log 2 is nothing but log 3/2. Question number 3. Integration from 1 to 2 4x cube minus 5x² plus 6x plus 9. 4 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन x³ dx, -5 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 1 to 2 x² dx प्लस 6 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन x dx प्लस 9 कांस्टेंट बाहर निकाला 1 dx. x³ का इंटीग्रेशन यहाँ पे ऊपर जाएंगे, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x² का x³/3 और 5 तो था ही, x का x²/2, 6 बाहर था ही, एंड 9 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 2. चलो 4 कट, यहाँ पे पहले 2 डालेंगे 2⁴ माइनस ये लोअर बाउंड डालेंगे 1 1⁴ -5/3. दिस इज दी 2³ - 1³ प्लस 6/2 मतलब 3. ये 2 डालेंगे 2² - 1² प्लस अगेन 9 2 - 1. सिंप्लीफाई दिस. 2⁴ is nothing but 16 - 1 -5/3. This is the 8 - 1 and 3. This is the 4 - 1 plus 9. This is the 2 - 1. 16 - 1 is 15. 8 - 1 that is 7. 7 5 is 35/3. 3 3 is 9 and again 9. So this is the 15 and 9 and 9 18. 15 plus 18 is 33 minus 35/3. Taking LCM 33 3 is 99 minus 35/3 and answer will 64/3. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx. sin 2x का इंटीग्रेशन होता है -cos 2x एंड कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में डालते हैं 2. 0 to π/4 ये -1/2 बाहर निकाल दिया. cos 2x का इंटीग्रेशन 0 to π/4, सबसे पहले x की वैल्यू π/4 डालते हैं, सो इट इज cos 2 times π/4 माइनस cos 0 डालेंगे लास्ट में. अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, दिस इज द cos π/2 माइनस cos 0. cos π/2 is nothing but 0, but cos 0 is 1 and the final answer is 1/2. Question number 5th. 0 to π/2 cos 2x dx. Integration of cos 2x is nothing but sin 2x/2. 0 to π/2 1/2 बाहर निकाल दिया. sin 2x का इंटीग्रेशन 0 to π/2, सबसे पहले x की वैल्यू π/2 डालते हैं, सो दिस इज द sin 2 times π/2 minus sin 0 is nothing but sin pi minus sin 0. sin pi is 0, 0 minus 0 is 0. Okay, now come to the question number 6. क्वेश्चन इंटीग्रेशन 4 to 5 e raised to x dx. e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x, सबसे पहले अपर बाउंड डालते हैं, x की जगह पे 5 e raised to 5 minus e raised to 4. e raised to 5 is nothing but e raised to 4 into e raised to 1 minus e raised to 4. Taking e raised to 4 common, so into bracket it is e minus 1. Come to the question number 7. इंटीग्रेशन 0 to π/4 tan x dx. tan x का इंटीग्रेशन log modulus sec x, पहले अपर बाउंड डालते हैं π/4, so log sec π/4 माइनस लोअर बाउंड डालेंगे log sec 0. log sec π/4 is √2 minus log sec 0 is 1, log 1 is 0, so this is the log √2 to the base e. √2 is nothing but 2 raised to half, so it is the half log 2. Question number 9. Integration 0 to 1 dx by square root 1 minus x². 1 minus x² is nothing but square root 1² minus x². It is sin inverse x 0 to 1. पहले अपर बाउंड डाला sin inverse 1 माइनस लोअर बाउंड डाला sin inverse 0. sin inverse 1 is π/2, sin inverse 0 is 0. Answer will be π/2. 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे. 0 to 1 dx by 1 plus x². It is nothing but x² plus 1². 1 upon a tan inverse x by a.
एंड फ्रॉम 0 to 1, तो 1/1 तो 1 हो जाता है. सो tan इनवर्स x 0 to 1, सबसे पहले अपर बाउंड tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0. tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस 0 एंड आंसर विल बी π/4. कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. इंटीग्रेशन π/4 इंटीग्रेशन cosec x dx. cosec का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec x माइनस cot x. बाउंड्री है π/6 to π/4. सबसे पहले π/4 डाला, log मॉड्यूलस cosec π/4 माइनस cot π/4. बाद में π/6 डाला माइनस log मॉड्यूलस cosec π/6 माइनस cot π/6. cosec π/4 is nothing but √2. cot π/4 is 1 माइनस cosec π/6 is 2. cot π/6 is √3. log में सब्ट्रैक्शन होता है तो डिवीजन log √2 - 1 upon 2 - √3. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर. इंटीग्रेशन 2 to 3 dx by x square minus 1. 2 to 3 इंटीग्रेशन dx by x square minus 1 इज रिटर्न x square minus 1 square. फॉर्मूला क्या है? dx by x square minus a square का 1 upon 2a log x minus a upon x plus a. ओके, a की जगह पर 1 है, सो 1 upon 2 बाहर निकल दिया. अभी x की जगह पे 3 डालते हैं, सो log 3 - 1/3 plus 1 माइनस अभी x की जगह पर 2 डालते हैं, log 2 - 1/2 plus 1. दिस इज log 2/4, दिस वन इज log 1/3. 2/4 is nothing but log 1/2 and this is the log 1/3. So this is the 1/2 and सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन करते हैं, डिवाइड बाय 1/3. इट इज़ 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, हाफ log 3/2. क्वेश्चन नंबर बाहर करेंगे. इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx. cos square का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसके लिए हम क्या करते हैं 1 + cos 2x/2. 1/2 बाहर निकाल दिया, 0 to π/2 1 + cos 2x dx. 1/2 0 to π/2 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2. 1/2 यहाँ पे अपर बाउंड π/2, लोअर बाउंड 0 माइनस 1/2. यहाँ पे x की जगह पे π/2 डाला तो sin π माइनस sin 0. sin π इज 0, sin 0 इज 0, सो 0 - 0 इट विल बी कैंसल एंड π/2 एंड आगे 1/2 है तो π/4 आएगा. क्वेश्चन नंबर 13. इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx by x square plus 1. 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया. 1/2 इंटीग्रेशन 2 to 3 2x dx. 2x is nothing but derivative x square plus 1 upon x square plus 1. So 1/2 this is the log x square plus 1. 2 to 3 पहले x की जगह पे 3 डाला तो log 3 square plus 1 माइनस x की जगह पे 2 डाला तो log 2 square plus 1. 3 square plus 1 is log 10, 9 plus 1 और ये 5. log 10 minus log 5. log में डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन करते हैं. log 10/5 इट इज log 2 हाफ log 2. क्वेश्चन नंबर 14. इंटीग्रेशन 0 to 1 2x plus 3 upon 5 square plus 1. दो पार्ट्स कर लेते हैं. 2x by 5 square plus 1 plus 3 को बाहर निकाल दिया, dx by 5 square plus 1. 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 10x ऊपर न्यूमरेटर में आ जाए. 1/5 10x इज नथिंग बट डेरिवेटिव 5 square plus 1 एंड 3 ये 5 कॉमन निकाल दिया, तो 3/5 x square plus 1/5. 1/5 इज नथिंग बट √5 1 upon √5 होल स्क्वायर. 3/5 इसका फॉर्मूला है 1 upon a की जगह पे 1 upon √5 tan इनवर्स x by a की जगह पर 1 upon √5 एंड बाउंड्री 0 to 1. ओके, ये तो f(x by fx) मतलब log fx 0 to 1. 1/5 log 5 square plus 1. ये सिंप्लीफाई करेंगे 5 एंड √5 विल बी कट 3/5 और ये √5 ऊपर जाएगा tan इनवर्स √5x. बाउंड्री रखते हैं, x की जगह 1 डाला तो ये 5 + 1 6 और x की जगह 0 डाला तो ये खलास और ये 1 log 1. log 6 log 1 विल बी 0. सो 1/5 log 6 3 upon √5. पहले x की जगह 1 डाला tan इनवर्स √5, x की जगह 0 डाला tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 इज 0. सो 1/5 log 6 plus 3 upon √5 tan इनवर्स √5 इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं और दूसरी मेथड ये भी है कि x स्क्वायर इक्वल टू टी ले लेते हैं. लेट x स्क्वायर इक्वल टू टी देन 2x dx इक्वल टू dt. सो x dx इज dt/2. ये x dx हो गया dt/2. अभी यहाँ पर जो बाउंड्री है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ये जो x की वैल्यू बताती है तो ये सब्स्टिट्यूशन लेने से उसको t की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दिस इज द x इक्वल टू 0 बट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर. t इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर. सो 0 स्क्वायर इट्स 0 एंड x इक्वल टू 1. सो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू भी 1 होगा. x 0 है तो t 0 होगा और x 1 है तो t भी 1 होगा. बाउंड्री पहले x की थी, अभी उसको t की बनानी पड़ती है. दिस इज e raised to t and x dx is nothing but dt/2. So 1/2 e raised to t dt. e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t
पहले टी की वैल्यू 1 डाली, फिर बाद में 0 डाली. e⁻1 माइनस e⁻0, e⁻1 इज e and e⁻0 इज 1. सो हाफ इंटू ब्रैकेट e माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है. डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर बनाते हैं 5x², तो 5 इंटू ब्रैकेट x² प्लस 4x प्लस 3 लिख दिया. तो 5x² तो हो गया, एक्स्ट्रा टर्म कौन सा हुआ, 5 4 जा 20x एंड प्लस 15 इतना हुआ, वो सब्ट्रैक्ट कर लिया. सो सेट हो गया दोनों साइड पे. ओके, सेपरेटाइजेशन करते हैं. 5 के नीचे पूरा और इसके नीचे पूरा, तो 5 के नीचे पूरा डालेंगे तो 5 बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, 20x प्लस 15, इसका फैक्टर निकाल देते हैं. 3 1 जा 3, x प्लस 3 x प्लस 1. अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे ए एंड बी वाली मेथड. इसको रिजल्ट नंबर 1 दिया. अब क्या करेंगे, 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1. 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a के साथ x प्लस 1 प्लस b के साथ x प्लस 3, नीचे x प्लस 1 x प्लस 3, ये कट हो गया. 20x प्लस 15 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3. अब x की वैल्यू -3 सपोज करते हैं ताकि ये b वाला पार्ट कैंसिल हो जाए और a वाली वैल्यू मिल जाए. तो 20 इंटू -3 प्लस 15 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 1. दिस इज द -60 प्लस 15 इज -45 एंड a इंटू -2. सो -45 इक्वल टू -2a. सो 45/2 इक्वल टू a. अब x की वैल्यू -1 सपोज करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं ताकि a कैंसिल हो जाए और b मिल जाए. टेक x इक्वल टू -1, सो 20 इंटू -1 प्लस 15 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 b इंटू -1 प्लस 3. -1 प्लस 1 विल बी 0. -20 प्लस 15 इज द 5 इक्वल टू 2b. सो b इक्वल टू -5/2 फ्रॉम 2. यहाँ पे 20x 2 नंबर का इक्वेशन ये वाला था, इसमें a एंड b की वैल्यू डाल दी, ए एंड बी की वैल्यू डाली, 45/2 और बी की वैल्यू -5/2 डाल दी. ये इक्वेशन कंप्लीट हो गया. अभी इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ था ये वाला, इसमें डालेंगे मतलब क्वेश्चन सेट हो जाएगा. इसके साथ तो इक्वेशन 1 में डालते हैं. सो 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 5 माइनस ये उसका इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया. सो इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन मतलब 5 इंटू 1 dx माइनस 45/2 dx बाई एक्स प्लस 3 प्लस 5/2 dx बाई एक्स प्लस 1. 5 1 का इंटीग्रेशन x 1 to 2 माइनस 45/2, दिस इज log x प्लस 3 1 to 2 प्लस 5/2 log x प्लस 1. 5 बाउंड्री रखेंगे 2 माइनस 1 माइनस 45/2. यहाँ पे x की जगह 2 डाला तो log 5, x की जगह 1 डाला तो माइनस log 4. अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 5/2. यहाँ पे x की जगह 2 डाला तो log 3, x की जगह पे 1 डाला तो log 2. ओके, लॉग में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन करते हैं. 45/2 log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2. माइनस 5/2 कॉमन निकाला तो ये 9 log 5/4 बचा और यहाँ माइनस log 3/2 माइनस 5/2 कॉमन निकाला. 17 नंबर का क्वेश्चन. 0 to 5/4 2 sec² x प्लस x क्यूब प्लस 2 sec² x का इंटीग्रेशन 10x, x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4/4, 2 कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन x. 10x 0 to 5/4, सो 10/4 माइनस 10 0 1/4. यहाँ पे x की जगह π/4 डाला तो π⁴/4 माइनस 0 प्लस 2 x की जगह π/4, अपर बाउंड लोअर बाउंड इज 0. 10/4 is 1. This is the π⁴/4 and again 4 will be 1 0 2 4 and plus ये 2 2 जा 4 so π/2. वो π⁴/1 0 2 4 plus π/2 plus 2. क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे. 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2. माइनस कॉमन निकाला. 0 to π cos² x/2 माइनस sin² x/2. ये मल्टीपल सब मल्टीपल चैप्टर 11th में ट्रिगोनोमेट्री में आ गया. cos x और cos का इंटीग्रेशन sin x. cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन नहीं, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है. cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस तो ऊपर से आ रहा है. माइनस लोअर अपर बाउंड डाला sin π माइनस साइन 0 0 माइनस 0 विल बी 0. क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रेशन 0 to 2. ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया. इंटीग्रेशन 6x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4. दो पार्ट्स कर दिए. 6x अपॉन x² प्लस 4 प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4. 6x में दो पार्ट्स अगेन करिए. 3 2 जा 6, 3 अंदर रखा, 2x बाहर रखा, 3 को बाहर रखा, 2x अंदर रखा ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर सेट हो जाए. 2x इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4. सो नीचे है fx ऊपर f'(x), इसका हो जाएगा log x² प्लस 4 और बाउंड्री 0 to 2. 3 इसका हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a की जगह पे 2 है, 3 तो बाहर निकाल दिया. ओके, अपर बाउंड रखा 2 रखा तो 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 log 8
जीरो डाला तो log 4, log 8 माइनस log 4, log में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन करते हैं, प्लस 3/2, 2 डालते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 3 log 8/4, log में डिवीजन है तो सॉरी log में सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन करते हैं, 3/2, tan इनवर्स 1 इज π/4, tan इनवर्स 0 इज 0, सो 3 log 2 प्लस दिस इज 3 π/8। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 x e raised to x प्लस साइन पाई x/4। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज योर u, दिस इज योर v, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v। इंटरनल इंटीग्रेशन आता है वो डेफिनेट में भी इनडेफिनेट करना है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x। कंप्लीट इंटीग्रेशन होने के बाद बाउंड्री रखनी है और डेफिनेट का रूल तब लगाना है, u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन एंड द होल इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी देखो इंटरनल इंटीग्रेशन आता है तो इनडेफिनेट करना है, x का डेरिवेटिव 1, e रेस्ट टू x का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू x dx, अगेन e रेस्ट टू x का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू x डाला और फिर बाद में बाउंड्री रखी। यहाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई x/4 एंड कोफिशिएंट π/4 नीचे डाला, ये ऊपर जाएगा -4/π, माइनस भी बाहर निकाल दिया, cos पाई x/4। बाउंड्री रखेंगे 0 to 1, पहले 1 डालते हैं तो cos π/4, 0 डाला तो cos 0। यहाँ पर भी बाउंड्री डाल दी मैंने, 1 e raised to 1 माइनस 0 e raised to 0 माइनस e raised to 1 माइनस e raised to 0। यहाँ cos π/4 इज 1/√2, cos 0 इज 1, e इसका तो 0 हो गया, e raised to 1 इज e raised to 0 इज 1, ब्रैकेट ओपन कर दिया और e माइनस e कट हुआ, 1 बचा, यहाँ से माइनस π/4, 4/π√2 एंड 4/π बचा, प्लस यहाँ 1 माइनस 2 2 ज़ा 4/π√2, सो 2 एंड √2, उसमें से एक √2 बचेगा, सो 1 माइनस 2 √2/π प्लस 4/π। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, 1 to 3 dx by 1 plus x square is nothing but tan inverse x from 1 to √3, so tan inverse √3 minus tan inverse 1, tan inverse √3 is π/3, tan inverse 1 is π/4, cross multiplication 4π minus 3π, it's a π/12। ओके इसके साथ अभी एक क्वेश्चन और करेंगे 22 नंबर का, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, 0 to 2 3 2/3 dx by 4 plus 9x square, 0 to 2/3 दिस इज dx by 3x the whole square plus 2 square। सो फार्मूला है 1/a मतलब 1/2, tan इनवर्स x by मतलब 3x/2 एंड कोफिशिएंट x का नीचे डाल दे 3, 0 to 2/3, ये हुआ 1/6 tan इनवर्स 3x/2, 0 to 2/3, x की जगह 2/3 डाला, सो ये हो गया tan इनवर्स 1, x के जगह 0 डाला, tan इनवर्स 0, एंड tan इनवर्स 1 इज नथिंग बट π/4, tan इनवर्स 0 इज 0, सो π/24 इज द आंसर। इसके साथ एक्सरसाइज 7.9 हमने कंप्लीट किया। इसके साथ मैं इसका PDF भी भेजता हूँ, लेकिन PDF में गलती से 7.8 हेडिंग लगा दिया है, तो वो समझ लेना है अपने आप।